यूनियन गवर्नमेंट एक नया नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग लेकर आई है। जो फ्रेमवर्क उन्होंने सारे स्टेट्स को भेजा है और स्टेट्स से इस पर रिप्लाई मांगा है। क्या ये फ्रेमवर्क एग्रीकल्चरल मार्केटिंग पे किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा? क्या सरकार उन किसानों को, किसान नेताओं को ये फ्रेमवर्क समझा पाएगी या इसके फायदे बता पाएगी जिन्होंने पहले 3 जो फार्मर लॉज लेकर आई थी, फार्म लॉज लेकर आई थी यूनियन गवर्नमेंट, उनका विरोध किया था और जिसकी वजह से ये 3 लॉज यूनियन गवर्नमेंट को वापस लेने पड़े थे। इस सब पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पॉलिसी फ्रेमवर्क में क्या है, किसान नेता इस पर क्या सोचते हैं, एक्सपर्ट्स इस पर क्या सोचते हैं और सरकार का इस पर क्या रवैया है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नवा ड्राफ्ट कटिया केंद्र ने राज्यों ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੋਸਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਸੀ 2021 ਚ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਅਨਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਹੂਬਹੂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਲੋ ਗੋਦਾਮ ਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਲੋ ਗੋਦਾਮ ਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਪੈਰਲ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਨਾਜ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਸਾਰਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਆਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਪੰਜਾਬ सरकार ਨੂੰ ਰੱਦ करना चाहिए। तो अगर खेती आप कर रहे हैं उसमें आपको MSP भी मिल रहा होगा, उसमें आपका गुजारा कैसे चलता है? अगर नहीं MSP ਹੁਣ 2200 ਤੇ 2250 ਜੋ ਵੀ ਫਸਲ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ 30000 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਪਰ ਏਕੜ ਰੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਛਮਾਹੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਕੁਇੰਟਲ 18-20 ਕੁਇੰਟਲ ਕੋਈ 22 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨੀ ਕਣਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ 22 ਦੂਣਾ 44000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਹੋਈ ਫਸਲ ਤੇ 15000 ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਤੇ ਬਾਉਣ ਬੀਜਣ ਤੇ ਸਾਰਾ, ਤੇ 30000 ਰੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਊਗਾ? ਬਚਤ ਕੀ ਹੈ? खेती ਜਿਹੜੀ घाटे च ऐसे करके जा रही ना, सानू रेट नहीं पूरा मिल रहा। 3 कानून आए थे पहले, किसान यूनियंस ने स्ट्रगल किया, किसानों ने स्ट्रगल किया और वो 3 कानून वापस हो गए। जो किसान मान रहे थे कि एक तरीके से उनको जो छोटे किसान है वो खत्म हो जाएंगे इससे। तो अभी एक नया ड्राफ्ट आया है, एक पॉलिसी ड्राफ्ट है जो सेंटर ने स्टेट्स को भेजा है और उनके विचार उस पर मांगे हैं। उसके बारे में आपने कुछ थोड़ा बहुत सुना है, पढ़ा सुनिया है जी भी ये जेड़े उदे नालों भी ज्यादा खतरनाक हो गए। एक अन्न सीधा नहीं फड़िया, घुमा के फड़ लिया भी ਉਹ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ 2200 2300 ਜੋ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੂਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ, ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ, ਜੇ 2200 ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 2400 ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋर्ड खत्म हो गया उस दिन फिर अपने भाव मिलने। आपको लगता है कि ये जो नया ड्राफ्ट आया है इससे जो सरकारी मंडियां हैं, APMC मंडियां हैं, वो खत्म हो जाएंगी? सानू मंडी जरूरी है जी। मंडी ते आड़ती हुण पिछले साल मेरे 10 एकड़ कणक जल गई, मेरे कोल कोई खर्चे पत्ते वास्ते वो नहीं सी। आड़ती नाल मेरे रिलेशन सी, मैं उदों 10 लाख रुपया ला के अपना घर चला लिया। जे हुण आड़ती नूं इह बाहर कर, मंडीकरण बोर्ड खत्म हो गया, आड़ती बाहर हो गया, सरकार थोड़ी सानू पैसा देगी भी तेरा नुकसान होया तू अपना घर चला ले। एक सानू बीज की प्रॉब्लम हो जाती। हुण असीं मई च मक्की बीजते, सानू मई च बीज नहीं मिलता खेतीबाड़ी महकमे तो। इस साल मैं इत्थे
ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ। सही टाइम पर आपको बीज नहीं हाँ जी हाँ, जिस तरह हुण मई च मक्की बीजनी हुंदी जी असीं, सानूं उस टाइम खेतीबाड़ी महकमे तो बीज नहीं मिलता। तो किसानों की अपनी समस्याएं हैं, एमएसपी की लीगल गारंटी हो, उनको जो चीज़ें चाहिए वो वक्त पर मिलें, जैसे उन्होंने बताया कि बीज उनको वक्त पर नहीं मिलता। और दूसरा जो नया ड्राफ्ट आया है पॉलिसी फ्रेमवर्क जो सेंटर ने भेजा है स्टेट्स के विचार जानने के लिए, उसके बारे में उन्होंने थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा सुना है, और उनका कहना है कि इससे एक तरीके से जो सरकारी मंडियां हैं वो खत्म करने की कोशिश हो रही है, और अगर वो मंडियां खत्म हो जाती हैं तो किसानों को इसकी बहुत मार झेलनी पड़ेगी। संयुक्त किसान मोर्चे ने नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को रद्द कर दिया है और केंद्र को चेतावनी दी है कि अगर इसको लागू किया गया तो किसान दोबारा सड़कों पर उतरेंगे। दूसरी ओर पंजाब सरकार किसान नेताओं से और माहिरों से इस पॉलिसी पर बातचीत कर रही है। ताकि एक पैरेलल मार्केट और कॉरपोरेट्स के लिए हर जगह अलग एक मार्केट बनाने का प्रोविजन करने का उन्होंने इसमें लिखा है। और उन्होंने लिखा है कि जितना जो कुछ हम पिछले जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में उन्होंने अपने वही पॉलिसी दोहराई है। सारा टोटल जो कानून हम वापस करवा के आए उसी तरफ ये इशारा करती है ये पॉलिसी। और क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसमें इंटरफियर करना केंद्र सरकार के अधिकार के क्षेत्र से बाहर है। तो हमने इसका विरोध किया है। हमने कहा है इसको किसी भी कीमत के, क्योंकि पंजाब का मार्केटिंग सिस्टम वर्ल्ड में सबसे बेहतर है और हरियाणा ने सिर्फ हमारी नकल की है, कहीं ऐसा बढ़िया है नहीं। हमने तो और भी सुझाव दिया है कि जो ये साइलोज वगैरह बन रहे हैं, ये अब मंडियां बहुत अच्छी बन गई, मंडियों को छोड़ो, अब साइलोज बनाओ सरकारी। एपीएमसी को और स्ट्रेंथन करना चाहिए, सभी फसलों की प्रोक्योरमेंट होनी चाहिए, ये हमारी डिमांड थी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट जाते हुए एपीएमसी मार्केट्स को डिसॉल्व करने का फैसला कर लिया और बिल्कुल कैटेगोरिकली उन्होंने इसमें लिखा है कि जो एपीएमसी मार्केट्स हैं वो मार्केट कमेटी फीस और अदर तरह के जो चार्जेस है उसको कलेक्ट करने का सिर्फ एक माध्यम बन गया। इसलिए एपीएमसी की जगह जो मल्टीपर मार्केट जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग है, ई ट्रेडिंग है, प्राइवेट मार्केटिंग है, ये सारी सभी चीजें वो लाना चाहते हैं, जिससे धीरे धीरे एपीएमसी मार्केट खत्म होगी। तीसरा, वो ट्रिपल पी के तहत जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसके तहत फूड प्रोसेसिंग का जो काम है उसको एपीएमसी मार्केट के अंदर लाना चाहते हैं। उससे दो काम हो गए, एक तो जो प्राइवेट प्लेयर है वो एपीएमसी मार्केट में घुस जाएगा, दूसरा कि जो फूड प्रोसेसिंग का कारोबार है वो सरकार उसको नहीं करना चाहती, वो पूरी तरह प्राइवेट प्लेयर को देना चाहती है। और इसमें वो कहती है कि बहुत सारा जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जितना भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है उसमें काफी बड़ा शेयर वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का है और ये ऑन द राइज है, लगातार वो बढ़ रही है। तो अगर वो बढ़ रही है तो सरकार इस तरह क्यों सोचती है कि प्राइवेट प्लेयर ही जॉब देगा? प्राइवेट जॉब्स तो बहुत कम सैलरी पे लोग कर रहे हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है रूरल एरिया में तो फूड प्रोसेसिंग का जो काम है वो या तो कोऑपरेटिव सेक्टर में हो या फिर उसको सरकार खुद करे, प्राइवेट प्लेयर को उसमें नहीं लाना चाहिए। लेकिन सरकार फूड प्रोसेसिंग में उनको ला भी रही है। तो वो वन नेशन वन मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है जो कि स्टेट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, उसको भी खत्म कर रहा है। जो स्टेट का इनकम का एक सोर्स है एपीएमसी मार्केट से, उसको भी खत्म कर रहा है। वन नेशन वन मार्केट की तरफ ये जो नया ड्राफ्ट है उसकी तरफ लेकर जा रहा। देखिए, इसमें उन्होंने बड़ी चालाकी की है कि उन्होंने ये कहा कि एग्रीकल्चर जो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन उन्होंने इसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि अगर यूटी और स्टेट्स कोई भी पॉलिसी बनाते हैं तो देयर पॉलिसी फ्रेमवर्क टू बी बाय एंड लार्ज इन कॉन्सोनेंस विद द नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो स्टेट सब्जेक्ट कहाँ रह गया? अगर ये जहां जहां बीजेपी सरकार है उन स्टेट्स में अगर लागू हो जाता है तो जो पंजाब और हरियाणा की जो उनकी घेराबंदी है वो बढ़ेगी कि सारे देश में लागू हो गया, आप लागू क्यों नहीं कर रहे? ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਲੰਕਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖੱਟ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ कोई फैसला करने जा रहे हैं। पंजाब सरकार 10 जनवरी तक सेंटर सरकार को इस एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के ड्राफ्ट के ऊपर अपनी राय देगी
उससे पहले किसानों से, एक्सपर्ट से और लोगों से, स्टेक होल्डर से बातचीत चल रही है। हमने कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया से भी बात करने की कोशिश की। उनका कहना है कि वो अभी किसानों से, एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद ही इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया देंगे, अपनी इस पर राय रखेंगे। 3 प्रमुख बातें हैं जिसका किसान विरोध कर रहे हैं, इसीलिए कि ये पुराने एक्ट ही एक इनडायरेक्ट तरीके से आ गए हैं, असीधे तरीके से आ गए हैं। उसका सबसे पहली बात तो ये है कि प्राइवेट बड़ी मंडी को ऑटोमेटिकली एक पॉलिसी ऐसी बनाई जाए कि उनको लाइसेंस मिल जाए, वो मंडी में इंटरवीन कर जाए। अभी तक मोनोपोली है एक टाइप की मार्केटिंग बोर्ड की, जो भी आएगा हर बार उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, कहाँ से खरीदना कहाँ से नहीं। वो लाइसेंस सिस्टम खत्म होके ऑटोमेटिकली वो बिग प्लेयर जो है मंडी में जो भी जेनस है या जो क्रॉप है, फसल है, उसको खरीद सकेंगे। दूसरी बात उसमें ये है कि आपका जो खेत है ये भी मार्केट यार्ड बन जाएगा ऑटोमेटिकली, को वो मार्केट में लाए बिना खेत से ही खरीद सकते हैं डायरेक्टली। और तीसरी बात उसमें ये इस तरीके से कर रहे हैं कि मार्केट फीस जो आप ले रहे हो पहले बाहर वालों से तो ले नहीं पाएंगे, जो लेंगे वो भी 1% के दायरे में रहेगी ओवरऑल। जैसे पंजाब वर्गी स्टेट में अब 3% RDF है, रूरल डेवलपमेंट फंड है, 3% मार्केट फीस है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पंजाब का शुरू से चल रहा है। अभी RDF भी जो पड़ा हुआ है नहीं दे रहे 10,000 करोड़, वो इसी वजह से नहीं दे रहे कि आपका ज्यादा है, 1% पे मानो, आगे से आप उस दायरे में ले आओ। और उसके अलावा एक और बात है कि साइलोज जो बने हुए हैं, बड़े स्टोर, बिग स्टोर, जिनका अडानी का या बाकी का मामला आ रहा था, उन साइलोज को डीम्ड रूप में ही ऑटोमेटिकली आप मार्केट यार्ड मान लोगे। और इट मीन क्या होगा कि फिर मार्केट में जाने की नहीं होगी, डायरेक्ट ही साइलों में जो चले गया अनाज या जो भी क्रॉप चली गई है वो वहां मार्केट में चली गई है। ये होगा। उससे क्या होता है, उससे बेहद, एक तो उनका तो मानना ये है कि पॉजिटिवली कि ये कंपटीशन होगा, हम तोड़ नहीं रहे इसको। पर जो फार्मर जिन्हें विरोध इससे पहले किया था वो भी इसीलिए किया था कि जब वो बड़ी मार्केट में आ जाएंगे प्राइवेट प्लेयर, वो ऐसा करेंगे जैसे सेब का किया है हिमाचल में, 2 साल ज्यादा रेट दे दिया और उसके बाद आजकल कोई पूछ नहीं रहा कि 2 साल हो सकता है वो थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा दे दे। एक तो उसके बाद जब मोनोपोली हो जाएगी तब पीछे हट जाएंगे और किसी ने नहीं पूछना। दूसरी बात ये है कि यदि मार्केट कमेटी के पास वो फंड ही ना आया, जिस फंड की बात है, क्योंकि एक तो अनाज बहुत बाहर चला जाएगा, एक उसकी अमाउंट कम हो जाएगी 1% की, तब वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, उसकी मरम्मत ही नहीं हो पाएगी, उसकी जो मंडियों की या मंडी सिस्टम वो अपने आप फ्लॉप हो जाएगा, मतलब एक लेवल पे। और इसी वजह से वो आर्थ का सेटअप भी है, जो कह रहे हैं कि मार्केट में एक बिचौलगी कर रहे हैं, जिस टाइप की मार्केट खरीद बेच, उसकी तो जरूरत नहीं रहेगी प्राइवेट मार्केट में, साइलों में जो वो अपने आप साइडलाइन हो जाएगा उस सारे मामले में। इसलिए ये कह रहे हैं कि ये इनडायरेक्ट तरीके से, और ये एक डिमांड प्री बजटरी उसमें आई भी है किसी न किसी रूप में, जो प्री बजट कंसल्टेशन जो कहते हैं, एक पूछते हैं उस मामले कि क्यों ना एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर मार्केटिंग को स्टेट सब्जेक्ट से निकाल कर कंकरेंट लिस्ट में ले जाया जाए। और जैसे इससे पहले भी कितने सब्जेक्ट, एजुकेशन, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, कितने चले गए हैं पहले जो स्टेट सब्जेक्ट थे, तब तो फिर डायरेक्टली टाइप का ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल हो जाएगा उस सारे मामले में। जो उसमें भी कंपटीशन में आके वो अपने आप को या तो कंसोर्टियम में शामिल कर लेते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं, या फिर जो बिग प्लेयर होता है दूसरों को परचेज कर लेता है, फ्रेंचाइजी रख लेता है। कभी लोगों को तो फायदा कंपटीशन में हुआ लगता नहीं कि कोई चीज उनको, हाँ फॉर द टाइम भी कुछ समय के लिए ये जरूर हो जाता है कि जो बिग प्लेयर है उसके पास एक ये कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है कि उसको आउट करने के लिए मैं सस्ता दे रहा हूँ थोड़ा बहुत। लोग ये भी कहते थे कि प्राइवेट स्कूल आएंगे, सरकारी स्कूल आएंगे, कंपटीशन में एजुकेशन बहुत बिल्ड हो जाएगी, और प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल में कंपटीशन आएगा तो कंपटीशन आएगा, मरीजों को तो फायदा हो जाएगा। क्या फायदा हुआ? सरकारी साइड मर गई है, प्राइवेट साइड महंगी हो गई है उसके ज्यादा, ना वो रीच में रहा लोगों को, ना वो रीच में रहा।
उसी तरीके से एग्रीकल्चर तो उससे भी ज्यादा लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। सेंटर के इस एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, जो ड्राफ्ट है, उसमें कहा गया है कि ये जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है वो स्टेट सब्जेक्ट है और इसी पर कहीं ना कहीं चिंता किसानों की तरफ से, एक्सपर्ट्स की तरफ से भी जताई जा रही है कि इसको स्टेट सब्जेक्ट की जगह अब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को कंकरेंट लिस्ट में लाने की कोशिश हो रही है। दूसरा, जो प्राइवेट पार्टनरशिप या बड़े प्लेयर को लाने की कोशिश हो रही है, उसको लेकर किसान चिंता जता रहे हैं। जो किसानी पहले ही क्राइसिस में है, उसका क्राइसिस बढ़ ना जाए, ऐसी चिंता किसान नेताओं को है और वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब सरकारी मंडियां उस कंपटीशन जिसकी सेंटर इस फ्रेमवर्क में बात कर रहा है, उससे जो है सरकारी मंडियां कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगी और किसान को थोड़ी देर के लिए, कुछ सालों के लिए तो अच्छा मूल्य दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद किसानों की हालत पहले जो सेब के मामले में हुआ है वही हालत किसानों की हो जाएगी। दूसरी एक चिंता और किसान जता रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी जता रहे हैं कि अगर मूल्य की बात की जा रही है, पहले ही एमएसपी की मांग जो है वो लीगल गारंटी के तौर पर किसान कर रहे हैं, तो अगर ऐसा होगा तो क्या उनको सही मूल्य मिल पाएगा? क्योंकि पहले भी जब इस बात को इंश्योर करने की बात की जाती रही है, तब भी बहुत ज्यादा जो किसान है वो गन्ने का अगर मामला ले तो वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे या उनको इस श्योरिटी के बाद भी सही टाइम पर उनका जो मूल्य है, उनका जो प्राइस है वो उनको नहीं मिल पा रहा कई साल तक। तो ये सारी चिंताएं हैं जो किसान सरकार के सामने रख रहे हैं और 10 जनवरी को केंद्र सरकार के सामने पंजाब सरकार अपनी राय देगी। ये पॉलिसी फ्रेमवर्क है, उसके बिल्कुल शुरुआत में उन्होंने कहा है कि इंडिया जो फूड सफिशिएंट हो गया है, तो जो सरप्लस है एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट है इंडिया का, वो 2023 में 50.2 जो बिलियन डॉलर है वहां तक पहुंचा है। लेकिन उन्होंने ये फैक्ट बिल्कुल उसमें मेंशन नहीं किया कि इंडिया का जो इंपोर्ट है वो भी लगातार बढ़ रहा है। तो लगातार दालों की और एडिबल ऑयल की इंपोर्ट बढ़ रही है और ये 20 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट है जो एडिबल और पल्सेस का सिर्फ एक साल में इंडिया में हुआ है। तो ये सारा पैसा यहाँ के किसानों को क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर ये सरकार अपने आप को समझती है कि हम राष्ट्रवादी हैं, तो राष्ट्रवाद इनका क्या, जो बाहर के देश है, जो बाहर की कंपनी है, उनको पैसा देने का है? इस देश के किसानों को वो पैसा नहीं दे सकते। उनका जो दालें हैं, उनके ऑयल सीड, वो एमएसपी नहीं खरीद सकते। तो फूड सफिशिएंट होने का जो दावा इस डॉक्यूमेंट में किया गया वो बिल्कुल झूठ है। आज भी इंडिया हंगर इंडेक्स में 111 नंबर पे है। एपीएमसी मार्केट में से सरकार बाहर होगी, प्रोक्योरमेंट की गारंटी सरकार खत्म करेगी, प्राइवेट प्लेयर करेगा, सब कुछ वो करेगा और स्टोरेज भी वो करेगा, तो पीडीएस भी धीरे धीरे खत्म होगा। तो यहाँ एक भूखमरी के जो स्थिति है वो और भयावह होगी, जो कि पहले भी काफी बुरी हालत में करोड़ों लोग यहाँ पर वो कुपोषण का वो शिकार है। तो इसलिए इस जो ये नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क है मार्केटिंग का, ये 3 फार्म लॉज को दोबारा लाने की कोशिश है और ये पूरी तरह कारपोरेट को खेती क्षेत्र को देने की कोशिश है।